Good morning, students. Today we are going to study about foreign exchange rate, foreign exchange market, and different types of foreign exchange rates. First of all, do you know what is foreign exchange? The currencies of different nations are known as foreign exchange. Like your currency is known as domestic currency. In the same manner, the currencies of other nations are known as foreign exchange. Domestic आपकी कंट्री के लिए, और जो बाहरी कंट्रीज हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज. जो उनकी करेंसीज हैं उनको हम बोलते हैं एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द करेंसीज ऑफ अदर नेशंस. द सेकंड थिंग इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. What is this? Foreign exchange rate is the rate at which currency of one nation is exchanged with currency of other nation. It is the price at which currency of one nation is traded with currencies of other nation. For example, $1 is equal to rupees 50. What does this mean? इसका मतलब है कि $1 अगर एक इंडियन को $1 को बाय करना है तो he needs ₹50. The exchange rate of $1 is ₹50. Now, can you tell me what is the exchange rate of 1 rupee in terms of dollars? The exchange rate of ₹1 is 1/50. जब भी हम exchange rate को explain करेंगे, it will mean per unit. कि एक यूनिट की foreign exchange को buy करने के लिए हमें domestic currency में कितनी वैल्यू चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 बाय करना है तो एक इंडियन को ₹50 चाहिए. इट्स क्लियर? नाउ, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट is a place or a system where foreign exchanges are traded with each other. जहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन होगा, जहां पर भी विदेशी मुद्राओं यानी फॉरेन करेंसीज का आपस में लेन देन होगा, उसको हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम और अ प्लेस वेयर फॉरेन करेंसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस आर एक्सचेंज्ड और ट्रेडेड विद ईच अदर. देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द फर्स्ट फंक्शन इज इट डिटरमाइंस exchange rate. It determines exchange rate. इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 3 तरह की exchange rate हैं. According to CBSE syllabus, you know we are following the CBSE syllabus. So we are having 3 types of exchange system. One is fixed, second one is flexible, and the third one is managed floating. But at present we are following flexible exchange rate mechanism. So under flexible exchange rate mechanism, it determines exchange rate. What? Foreign exchange market determines exchange rate. You all know that in foreign exchange market the currencies are being traded for each other. So there is one factor demand, the other factor supply. On the basis of these two factors, demand and supply, foreign exchange rate is determined. For example, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है. अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज. अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल. When availability is more, the exchange rate or the price will fall. This also takes place in foreign exchange market. आप लोगों ने market equilibrium में पढ़ा होगा. You must have studied in market equilibrium that the price is determined where quantity demanded is equal to quantity supplied. In the same manner, foreign exchange rate is determined where quantity demanded of foreign exchange is equal to quantity supplied of foreign exchange. So the first thing is it determines exchange rate. ये जो डिटर्मिनेशन है एक्सचेंज रेट का उसको हम डिटेल में करेंगे थोड़ी देर के बाद. अभी हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सेकंड थिंग
It provides credit channels. I repeat it. It provides credit channel. Suppose you want to import from foreign nations. आपको क्या चाहिए? अगर आपको फॉरेन नेशन से कुछ इंपोर्ट करना है तो आप अपने रुपीस से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके रुपए की वैल्यू फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको या तो उनकी करेंसी बाय करनी पड़ेगी या आपको डॉलर बाय करना पड़ेगा। वाई डॉलर? बिकॉज डॉलर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। तो आप डॉलर को आपको बाय करना पड़ेगा। आप बाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? आप उधार भी तो ले सकते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इट प्रोवाइड्स क्रेडिट चैनल। आपको मालूम है इंडिया में कौन कौन हमको जो है फॉरेन एक्सचेंज को उधार दे सकता है? कोई इंस्टीट्यूट को जानते हैं आप? देखिए, आपने सुना होगा एक्सिम बैंक, EXIM, एक्सिम बैंक। ये एक्सिम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, EX फॉर एक्सपोर्ट, IM फॉर इंपोर्ट। तो जो एक्सिम बैंक है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मिलाकर बना है। ये हमको फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमें चाहिए उसको हम वहां से बोरो कर सकते हैं। And the third function of foreign exchange market is it provides for hedging, HEDGING, hedging. Do you know what is this hedging? You must have heard we are having hedges in park. पार्क में हमारे पास चारों तरफ hedges होती हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं इतने बड़े बड़े साइज के, वो प्रोटेक्शन देने के लिए ताकि कोई भी अनवांटेड एनिमल अंदर ना जाए। हैज लगाते हैं चारों तरफ। सेम वे वी आर लर्निंग हैजिंग हियर, इट प्रोवाइड्स फॉर हैजिंग। बेसिकली व्हाट इज हैजिंग? हैजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर ऑफ अ गुड। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग refers to a contract between buyers and supplier of foreign goods. This is hedging. This is contract. Now ये contract किसके बारे में? What does this contract all about? Contract किसके बारे में? देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ एग्जांपल से। सपोज आप एक इंडियन हैं और आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। आपने जो मैन्युफैक्चर किया है सामान, उसको मान लो आप अमेरिका में भेज रहे हैं। आपने अमेरिका में 1 लाख रुपीस तो गुड वर्थ रुपीस 1 लाख आपने अमेरिका में भेजे। अगर एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू रुपीस 50 है तो अमेरिका से आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे? थिंक कि आपने 1 लाख रुपए का सामान अमेरिका में भेजा, अमेरिकन बायर आपको कितने डॉलर्स देगा बदले में? उसके पास रुपए तो है नहीं, वो तो आपको डॉलर ही देगा। तो कितने डॉलर्स वो आपको पे करेगा अगर आप उसको 1 लाख रुपीस के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं? इफ यू डिवाइड दिस 1 lakh from 50, you will be getting $2,000. You will be getting $2,000. Am I right? Because $1 is equal to rupees 50, so $2,000 will be equal to rupees 1 lakh. Clear? Now कुछ ऐसा होता है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है मार्केट में कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है? Now $1 is equal to rupees 60. फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है अब हमें पहले से ज्यादा रुपए चाहिए $1 को बाय करने के लिए। We need more rupees than earlier to buy 1 unit of foreign exchange. That is now the value of $1 is how much? Rupees 60. It means dollar has become costlier. डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर महंगा हो गया है इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई है और इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो जब ये महंगा हो गया है, आप कितने डॉलर को एक्सपेक्ट करें? यानी आप $1 से रुपीस 60, यानी 60 रुपीस में $1 मिल रहा है, तो 1 लाख में कितने डॉलर्स मिलेंगे?
डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा कम से कम 1666.6. If you divide this, you will be getting this much of dollars, $1666.66. पहले से आपको डॉलर का मिल रहे हैं, यानी सामान उसने सप्लाई किया सपोज जनवरी के महीने में, और जनवरी में जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 is equal to ₹50. लिख देता हूं यहाँ, दिस इज इन जनवरी. जनवरी में उसने सामान सप्लाई किया है, $1 ₹50 के बराबर है. He is expecting $2000. Now what happens? 2 महीने बाद एक्सचेंज रेट बढ़ गई है, ऐसा उसको अभी तक मिला नहीं है. मार्च, इट वाज डिसाइडेड कि मार्च में पैसा दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शंस एट ए टाइम नहीं होती है बिजनेस वर्ल्ड में, कुछ टाइम लैग होता है. तो डिसाइड हुआ कि मार्च में पैसा दिया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मार्च में डॉलर महंगा हो गया, ₹60 का हो गया. इंडियन को अमेरिकन कितना ऑफर करेगा, 1666. इसको लॉस हो गया, इंडियन को लॉस हो गया. इंडियन कहेगा नहीं, मैंने जनवरी में माल सप्लाई किया था, मुझे $2000 दीजिए. अमेरिकन कहेगा नो, द एक्सचेंज रेट इज दिस नाउ, आई गिव यू 1666. क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में. तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए देयर इज कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी एक्सचेंज होगा पैसों का, वो क्या पहली एक्सचेंज पर होगा या बाकी पर होगा, कोई भी चेंज हो जाएगा. यानी जो ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो एक्सचेंज रेट थी उस पर होगा, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस पर पैसों का ट्रांजैक्शन होगा. तो दिस इज hedging. Hedging is a contract between buyers and suppliers of foreign goods to protect them from any conflict which may arise due to change in exchange rates. तो मालूम है एक्सचेंज रेट बदलने से एक आदमी को जरूर नुकसान हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये $1 मार्च में हो जाता ₹25 था, डॉलर की वैल्यू गिर जाती मान लो, तो क्या होता, तो इंडियन को मिलते $4000. इंडियन को मिलते $4000. किसको फायदा हो जाता, इंडियन को. घाटा किसको हो जाता, अमेरिकन को. तो जब भी एक्सचेंज रेट आपकी चेंज हो जाएगी, एक पार्टी को नुकसान होगा और एक पार्टी को फायदा होगा. जिस करेंसी की वैल्यू बढ़ती है उस पार्टी को फायदा हो जाएगा, जिस करेंसी की वैल्यू कम होती है उस पार्टी को नुकसान हो जाएगा. यू गॉट इट? तो आई टोल्ड यू दैट फॉरेन एक्सचेंज, द करेंसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस. फॉरेन एक्सचेंज रेट, द प्राइस ऑफ वन करेंसी in terms of another currency. If you want to buy 1 unit of dollar, how many rupees you would be paying? That is the exchange rate for dollars. Third thing is foreign exchange market. It's a place or a system where foreign exchanges of different nations are exchanged or traded with each other. It is having 3 functions. It determines exchange rate, it provides credit channels, it provides for hedging. And what is hedging? The contract between the buyers and the suppliers so that there may be no conflict between these two. पहले से ही हमारा जो है करार हो जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन है पैसों की, वो एक्सचेंज रेट जो प्रीवेल कर रही थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, या जो करेगी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी. दैट्स क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. If you want to note down, you can note it. The basic things you will find in the books. तो आप बुक्स को रेफर कर लें, और ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए है. अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ बोर्ड को. नाउ हम पढ़ेंगे अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट the things are the sources of supply of foreign exchange and sources of demand of foreign exchange. Sources of demand for foreign exchange. FE, foreign exchange. Now what are the sources of demand? Sources of demand का मतलब why do we need dollars? किसी को डॉलर्स क्यों चाहिए, किसी को फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? तो ऑब्वियस आंसर है इंपोर्ट करना है भाई, यानी वी वांट टू इंपोर्ट. In order to import foreign goods, what we require? We require foreign exchange.
to visit foreign countries. फॉरेन कंट्रीज को विजिट करने के लिए वी नीड डॉलर्स, अपने रुपीस से काम नहीं चलेगा. थर्ड वन इज टू सेंड अ गिफ्ट अब्रॉड. इफ यू वांट टू सेंड अ गिफ्ट अब्रॉड, बाहर आपके ब्रदर्स सिस्टर्स रिलेटिव्स पढ़ रहे हैं, उनको आप पैसे भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं गिफ्ट. ये जो हम बिना कुछ किए पैसे दे रहे हैं उनको, उसको हम गिफ्ट ही बोलेंगे. दिस इज कंसीडर्ड एज गिफ्ट. टू सेंड अ गिफ्ट अब्रॉड, टू इन्वेस्ट इन फॉरेन नेशंस. अगर हमें फॉरेन नेशंस में कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें फॉरेन नेशंस में इन्वेस्ट करना होगा. इसी को हम बोलते हैं टू इन्वेस्ट इन फॉरेन नेशंस. हमारे यहाँ पेप्सी ने इन्वेस्ट किया, हमारे टाटास आर इन्वेस्टिंग इन साउथ कोरिया, लंदन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इटली में. दिस इज ऑल टू इन्वेस्ट इन फॉरेन नेशंस. और जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्पेकुलेशन. इंडिया में लोग जो है डॉलर की होर्डिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं. क्यों? दे एक्सपेक्ट कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा डॉलर का तो कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे. जब अभी डॉलर एक डॉलर मान लो 50 रुपए में एक्सचेंज हो रहा है और डॉलर का प्राइस बढ़ गया, वो डॉलर 60 रुपीज हो गया, तो पहले एक डॉलर के बदले में मिल रहे थे 50 रुपीज. इस कंडीशन में एक डॉलर के बदले मिलेंगे 60 रुपीज. मान लो एक आदमी ने 1 लाख डॉलर को होल्ड कर लिया, तो उसने 1 लाख डॉलर कितने में बाय किए होंगे? हाँ जी, 1 लाख डॉलर कितने रुपीज में बाय किए होंगे? 50 लाख रुपीज में. बदले में उसको कितने मिलेंगे? 60 लाख. उसको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया. तो लोग क्या करते हैं? स्पेकुलेट करते हैं फॉरेन करेंसीज में कि whenever their price will increase, by selling them some profits may be earned, and that is known as, these all are known as sources of demand for foreign exchange. Imports, to visit foreign countries, to send a gift abroad, to invest in foreign nations, and speculation. आप नोट करिए 1 मिनट. Now come to sources of supply of foreign exchange. Sources of supply of foreign exchange. अभी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या हैं. What are the sources of supply of foreign exchange? इसका मतलब है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कैसे आती है. सपोज वी आर लिविंग इन इंडिया, हमको डॉलर्स की सप्लाई कैसे हो रही है, इसका सिंपल सा मतलब है. तो सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में पहली चीज आ गई फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है. एक्सपोर्ट्स आर द गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड दे आर सोल्ड टू अब्रॉड. हमने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया और बाहर इन गुड्स को बेच दिया. ये हो जाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स. द सेकंड वन इज foreigners visiting our country. जो foreigners as a tourist हमारी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, they are bringing dollars with them, so we are getting the supply of dollars. The third one is to receiving a gift from abroad. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कुछ कैलेमिटी आ गई, प्रॉब्लम हो गई, कुछ फॉरेनर्स ने हमारी हेल्प की, दैट इज आल्सो नोन एज गिफ्ट, डोनेशंस. बाहर हमारे कुछ लोग काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, साइप्रस में काम कर रहे हैं. दे आर सेंडिंग देयर इनकम्स टू देयर फैमिलीज व्हिच आर स्टेइंग इन इंडिया. फॉर दोस फैमिलीज दैट इनकम बिकम्स गिफ्ट. वी कॉल इट टू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड. द फोर्थ वन इज फॉरेनर्स investing in our country. So one major source of supply of foreign exchange is foreigners investing in our country. Foreigners invest in our country by two ways. One is direct investment, other one is portfolio investment.
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है फॉरेनर्स की जिसमें उनको यहाँ पर जो भी चीज वो बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह उनका पूरा राइट है, लेकिन कंट्रोल राइट भी है और कंट्रोल भी है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्ट करना शेयर्स में। यू बिकम द ओनर बट यू डू नॉट गेट द कंट्रोल। तो व्हेन यू गेट द कंट्रोल along with the ownership it becomes direct investment, but when you do not get any control but you get the ownership that becomes portfolio investment. So these are the sources of demand for foreign exchange and these are the sources of supply of foreign exchange. Always remember whenever demand comes, आप याद रखना import मत भूलना। जब भी क्वेश्चन आए हाँ जी डिमांड के बारे में, you must remember import। क्यों चाहिए हमें डॉलर, क्यों डिमांड कर रहे हैं? सबसे पहली चीज इंपोर्ट, बाकी सब है बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आएगी सप्लाई कहां से हो रही है, यू हैव टू रिमेंबर इट इज एक्सपोर्ट्स। रिमेंबर सप्लाई एक्सपोर्ट्स, डिमांड इंपोर्ट्स। विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस और दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ जाने से पहले आई विल गिव यू अ टिप दैट इज नॉट फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके बाद के टॉपिक के लिए आपकी हेल्प करेगी। मैं एक लाइन लिखूंगा ऊपर and you must remember that line by your heart। मैं हिंदी में लिखूंगा वो लाइन, mind you। जिस देश की करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, जिस देश की करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, कम हो जाती है, वहां का माल या सामान फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो जाएगा। फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो जाएगा। रिमेंबर दिस, जिस भी देश की करेंसी की वैल्यू फॉल होगी वहां का सामान फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो जाएगा। So if the value of domestic currency falls, what would happen? Indian goods will become cheaper for foreigners. If the value of dollar increases, what would happen? The foreign goods will become cheaper for our country. अगर इंडिया के लिए डॉलर महंगा हो गया है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, तो वहां का माल हमारे लिए महंगा हो जाएगा। अगर अमेरिका का जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम हो गई है हमारे लिए, मान लो $1 अभी 25 रुपए का मिल रहा है, तो डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, तो वहां का माल हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग ओनली, द रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये कहां काम आएगा आपको, द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। थैंक यू वेरी मच।